Hello children, in previous video I have explained the categories of share capital. This concept I have explained with the numerical question. So again we revise, after that we will continue our chapter. Categories of share capital. First, authorized capital means registered capital. Second, issued capital. It is that part of the authorized capital which is actually issued to the public for subscription. Note, another part, unissued capital, may be offered for public subscription at a later date. Next, subscribed capital, it is that part of the issued capital which has been actually subscribed by the public. Called up capital, it is that part of the subscribed capital which has been called up on the shares. Next, paid up capital, it is that portion of the called up capital which has been actually received from the shareholders. Note, if any of the shareholders has not paid an amount on calls, this amount may be called as calls in arrear. Next, uncalled capital, that portion of the subscribed capital which has not yet been called up. Reserve capital, a company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only in the event of winding up of the company. It's called reserve capital. So प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको एक बैलेंस शीट दिखाई थी और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंपनी अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है। उसके लिए हमें वहाँ पर एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को शो करके दिखाया था, सॉल्व करके दिखाया था, सॉरी। अब यहाँ पर जैसा कि एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। So children, this is question. Let us take the following example and show how the share capital will be shown in the balance sheet of a company. Sunrise Company Limited, New Delhi has registered its capital as rupees 40 lakh divided into 4 lakh shares of rupees 10 each. The company offered to the public for subscription 2 lakh shares for rupees 10 each as rupees 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and the balance on final call. The company received application for 2,50,000 shares. This condition is oversubscription. The company finalized the allotment on 2 lakh share only and rejected application for 50,000 shares. The company did not make the final call. The company received all the amount except on 2,000 shares where call money has not been received. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपनी जो कंपनी थी उसकी 40 लाख जो है वो शेयर्स डिवाइड किए। 40 लाख की ऑथोराइज कैपिटल थी, मैक्सिमम वैल्यू है जो रजिस्टर्ड की गई है कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन के समय पर। इसके बाद कंपनी ने अपनी 40 लाख की जो अमाउंट थी, जो कैपिटल था, उसको डिवाइड किया और 4 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वहाँ पर 4 लाख जो शेयर है उसकी एक शेयर की जो वैल्यू वहाँ पर डिफाइन की है वो है 10 रुपीज़। अब कंपनी ने अपने 4 लाख के शेयर में से 2 लाख शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किए 10 रुपीज़ ईच। तो इस तरह से 40 लाख रुपए की कैपिटल फर्म को चाहिए, कंपनी को चाहिए, जिसके लिए उसने 4 लाख शेयर्स में उसको डिवाइड किया और 10 रुपीज़ का एक शेयर वहाँ पर डिक्लेयर किया। इसके बाद कंपनी ने 4 लाख शेयर बनाने के बाद लेकिन पब्लिक सब्सक्रिप्शन अभी उसको सिर्फ 20 लाख रुपीज़ चाहिए अपनी कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पर उसने 20 लाख शेयर जो 2 लाख शेयर हैं उसको उसने इशू किया है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए। अब यहाँ पर कंपनी ने 2 लाख शेयर पे 10 रुपीज़ के अमाउंट के हिसाब से कंपनी उसको रिसिप्ट रिसीव करेगी। उसके लिए कंपनी ने कुछ इंस्टॉलमेंट वहाँ पर बनाई है, like application 2 rupees on application, 3 rupees on allotment, 3 on first call and balance on final call। तो इस तरह से जो कंपनी है उसने 4 इंस्टॉलमेंट अपनी यहाँ पर प्रिपेयर की है। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 शेयर। लेकिन कंपनी तो इशू करी थी केवल 2 लाख शेयर, लेकिन एप्लीकेशन उसको रिसीव हुई है फ्रॉम द पब्लिक साइड से उसको रिसीव हुई है एप्लीकेशन 2,50,000। तो इस कंडीशन को यहाँ पर कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जब आप
2 लाख शेयर के लिए आप 2 लाख शेयर को बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर खरीदने वाले जो पब्लिक लोग हैं, जो लोग हैं अपने आप को वहाँ पर एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं आपकी कंपनी में, उन्होंने एप्लीकेशन आपको सेंड की है 2,50,000। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। वहाँ पर कंपनी ने जितने उसको सिर्फ 2 लाख शेयर के जो एवज में ही उसको मनी चाहिए, तो उसने 50,000 की जो ओवर एप्लीकेशन थी उनको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया और 2 लाख जो एप्लीकेशन थी उनको रिसीव किया और उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी पेमेंट को रिसीव करेगी। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। इस तरह से कंपनी ने कहा कि जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की यहाँ पर 2 रुपीज़ की बन रही है, तो जिसके लिए अभी मैंने कोई भी कॉल नहीं की है। तो इसका मतलब 10 रुपीज़ में से 2, 3, 5, 3, 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कंपनी को मनी पैसा रिसीव होने वाला है, जिसकी टोटल वैल्यू बनेगी 16 लाख रुपीज़। 20 लाख रुपीज़ के लिए वो यहाँ पर एप्लीकेशन भेजी गई, अनाउंसमेंट किया गया, प्रॉस्पेक्टस इशू किए गए लोगों को, और वहाँ पर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पर पैसे इस अकॉर्डिंग, इस टर्म ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है पब्लिक अब अपने आप को सब्सक्राइब कराएगी। हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है नोट्स टू अकाउंट, का मतलब है डिटेल टू अकाउंट्स, कि कैसे डिटेल हमें उसमें करना है बैलेंस शीट। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट कि आपने डिटेल कैसे किया। फर्स्ट शेयर कैपिटल, मैंने कहा था कि ये हेड है और ये सब हेड है। शेयर कैपिटल के अंडर में आएगा ऑथोराइज और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, कि शेयर कैपिटल का मतलब कि टोटल पैसा आपके पास कितना आने वाला है, ऑथोराइज कैपिटल से जो आपने रजिस्टर्ड की है अपनी कंपनी को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो 4 लाख शेयर कंपनी ने अपने बनाए, 10 रुपीज़ का एक था, तो 40 लाख रुपीज़ जो है ऑथोराइज कैपिटल है फर्म की जो बन चुकी है। इसके लिए कंपनी ने इशू किए हैं अपने शेयर 2 लाख 10 रुपीज़ ईच, तो 20 लाख रुपीज़ यहाँ पर इसको 2 लाख शेयर इशू करने से 20 लाख रुपीज़ रिसीव होंगे। सब्सक्राइब कैपिटल, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमने इशू तो 2 लाख शेयर किए, लेकिन सब्सक्राइब कितने लोगों ने हमारे शेयर्स को खरीदा है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, यहाँ पर उसने बताया कि 2 लाख शेयर के जो है जो सब्सक्राइबर है वो मुझे मिल चुके हैं, केवल उनमें एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास हमारे 2000 शेयर थे और जिसने हमें फाइनल कॉल पेमेंट नहीं की है। तो फाइनल कॉल पेमेंट की जो अमाउंट है वो है 2 रुपीज़। इस तरह से 2 लाख शेयर 10 रुपीज़ ईच आपको मिलने चाहिए थे, मिलेंगे आपको 20 लाख रुपीज़, लेकिन अभी आपने लास्ट कॉल जो 2 रुपीज़ की है वो नहीं की है, तो इसका मतलब आपने 2 लाख शेयर के लिए केवल अभी 8 रुपीज़ की जो है अमाउंट वही मंगाई है, जिसके लिए 16 लाख रुपीज़ आपको रिसीव होंगे। 4 लाख रुपीज़ आपके बाद में आएंगे जब कंपनी कॉल करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पर बताया गया कि कॉल इन एरियर्स, कि किसकी वजह से कॉल इन एरियर्स हुआ, कि पैसे कम हो गए, हमें प्रॉपर 16 लाख रुपीज़ रिसीव नहीं हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक शेयर होल्डर कोई ऐसा था जिसके पास हमारे 2000 शेयर थे और उसने हमें कॉल पेमेंट नहीं की, जो कि हमारी 3 रुपीज़ की थी। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की थी, 3×2=6, तो यहाँ पर 6000 रुपीज़ उस शेयर होल्डर की तरफ से कंपनी को पे नहीं की गई एट द टाइम। इसीलिए यहाँ पर उस कंडीशन को हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर, कि आपको 16 लाख रुपीज़ रिसीव होने हैं सब्सक्राइब कैपिटल एज ए सब्सक्राइब कैपिटल, लेकिन वहाँ पर 6000 रुपीज़ आपको नहीं रिसीव हुए हैं, तो वो आपके लेस हो जाएंगे। एक्चुअल जो आपको अमाउंट मिलेगा वही आपकी सब्सक्राइब कैपिटल बनेगी, जो आपको रिसीव हुई है 15,94,000। सो चिल्ड्रन, ये हमारी शेयर जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट है, उसका फॉर्मेट है, और ये इतना ही फॉर्मेट हमारी एज अ बैलेंस शीट में यूज़ होगा अभी। Disclosure of share capital in the company balance sheet. As per Schedule 3rd of the Companies Act 2013, share capital is required to be disclosed in a company balance sheet in the following manner. Balance sheet as at डेट आ जाएगी, यहाँ पर सेशन आ जाएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये हेड है। अब यहाँ पर ये इसको हम बोलेंगे हेड, ये हमारा हेड है, ये इसका सब हेड है, और जिस तरह से यहाँ पर लिखे हैं ये सब चीज़ें, ये इसी तरह से सेम टू सेम हमें लिखनी होंगी। कोई भी चेंजेस आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हेड इसको कहते हैं, इसके बाद ये सब हेड है और इनको हम कहेंगे मेजर हेड।
क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि फर्स्ट हेड जो हमारा सबसे बड़ा हेड है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर में आते हैं उसको बोलते हैं सब हेड, उससे छोटा है, और उसके बाद है मेजर हेड कि इनके अंदर और कितने पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर इसको समझते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो भी पैसा अभी शेयर होल्डर्स कंपनी में लगा रहे हैं वो कंपनी की कैपिटल तो है, लेकिन अभी जब तक कंपनी उनको वापस नहीं करती है या उनको डिविडेंड पे नहीं करती है वो वहाँ पर एक लायबिलिटी की तरह क्रिएट रहेंगे। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है कि ऐसा सारा पैसा जो भी शेयर होल्डर्स की तरफ से जमा किया गया है, इकट्ठा किया गया है कंपनी में, उसे हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। शेयर कैपिटल की जो भी पैसा शेयर्स को खरीद करके शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस की जहाँ पर अभी कंपनी ने, जैसे पीछे एक क्वेश्चन में वहाँ पर बताया था कि कंपनी ने अपनी एक फाइनल कॉल की अमाउंट को अभी नहीं मंगाया है शेयर होल्डर से, और उसको वो में भी अगर कभी ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती हैं कि कंपनी वाइंड अप होने लगे या किसी बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ में फंस जाए, तो उस टाइम पर कंपनी उस पैसे को मंगाएगी, और वरना तब तक उसको वेट मतलब एक लास्ट स्टेज के लिए अपना रिजर्व रखेगी, तो वो उसका तब तक क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, कि मनी रिसीव, यहाँ पर पैसा रिसीव कर रही है कंपनी अगेंस्ट शेयर वारंट, कि जो शेयर होल्डर्स खरीद रहे हैं तो वो उनके शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स अपने खरीद चुके हैं और उन शेयर्स की गारंटी में वो पैसा कंपनी को पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट pertaining to share capital are to be provided in notes to account as given below। तो जो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है ये इतना ही अभी हम यूज़ करेंगे। अब हम इसका नोट्स टू अकाउंट देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट है, और शेयर कैपिटल अभी मैंने बताया कि ये हेड है, और ऑथराइज कैपिटल ये इसका सब हेड बन जाएगा। ऑथराइज कैपिटल डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये हम अभी बात करेंगे। इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है तो वहाँ पर 2 टाइप्स के शेयर में उसको इशू करती है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जहाँ पर सपोज ने कहा इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज ईच, कि 2 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए और 10 रुपीज़ ईच उसकी वैल्यू है, तो उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से अगर 2 लाख शेयर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए और 10 रुपीज़ ईच वहाँ पर इशू किए गए, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी, और दोनों को हम टोटल करेंगे। अब यहाँ पर इशूड कैपिटल, कि अगर सपोज कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए और 10 रुपीज़ ईच उसकी वैल्यू है, तो इशू कैपिटल, तो उसने सपोज 2 लाख शेयर अपने बनाए, जिसमें से वहाँ पर केवल उसने 1 लाख शेयर ही इशू किए हैं इक्विटी को, और जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ ईच है। तो इसका मतलब एक तरह से हमें यहाँ पर वैल्यू रिसीव होगी 10 लाख रुपीज़। इसी तरह से 2 लाख शेयर अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू किए हैं और यहाँ पर 1 लाख ही उनको इशू किए जा रहे हैं, और कंपनी कह रही कि 1 लाख शेयर हम बाद में इशू करेंगे, अभी नहीं, तो इस तरह से 10 लाख रुपीज़ हमें इनसे 20 लाख रुपीज़ आप इक्विटी शेयर होल्डर्स से कवर कर सकते हैं एज अ कैपिटल, और 20 लाख रुपीज़ आप कवर कर सकते हैं एज अ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। लेकिन अभी आपने रिक्वायरमेंट टू द कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज़ अपने शेयर होल्डर से मंगाने के लिए कॉल की है। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब कि आपने सपोज 1 लाख शेयर इशू किए, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल कितने शेयर होल्डर्स ने उनको खरीदा और वो आपको पैसे पे कर रहे हैं। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सपोज आपने 1 लाख शेयर यहाँ पर इशू किए, सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रही है कंपनी, ठीक है, और उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ ईच है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 10 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब कंपनी को रिसीव होंगे 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है। यहाँ पर इसको खरीदने वाले सपोज 4 लोग हैं शेयर होल्डर, जिनको हम कहेंगे बी, सी एंड डी। 1 लाख शेयर अब यहाँ पर खरीद रहे हैं ए, सपोज ए ने खरीदे 20,000 रुपीज़, बी ने भी खरीदे 20,000 शेयर, सी ने भी खरीदे 20,000 शेयर, और यहाँ पर 40,000 शेयर खरीदे गए बाय डी।
इस तरह से कंपनी ने 1 लाख शेयर को इशू किया। किसके लिए? पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए। कंपनी कह रही है कि मैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन कर रही हूँ और लोग मतलब सभी लोगों को इनवाइट कर रही हूँ और कोई भी आए और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे और वहाँ पर उसका ओनर बने। तो कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर को इशू किया जिसमें उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ की ईच है। तो इस तरह से 10 लाख रुपीज़ कंपनी को रिसीव होने वाले हैं, जिसके लिए कंपनी को 4 शेयर होल्डर्स मिले और इन चारों शेयर होल्डर्स ने 1 लाख शेयर को इस तरह से खरीदने की इच्छा जताई। अब यहाँ पर इंटू 10, अब इसका मतलब देखिए 2 लाख रुपीज़ कौन पे करेगा? ए। यहाँ पर 10 ईच 2 लाख रुपए पे करेगा बी। इसी तरह से 10 इंटू ईच 2 लाख रुपीज़ पे करेंगे सी। और यहाँ पर इंटू 10 इक्वल्स टू 4 लाख। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग शेयर होल्डर अपनी अपनी पेमेंट को इशू करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर फॉर्मेट में बताया कि इशूड कैपिटल की कंपनी ने कितने शेयर इशू किए और उनसे अब वो वहाँ पर बताया जा रहा है कि सब्सक्राइब कैपिटल आप कंपनी ने इशू किए 1 लाख। सपोज कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर। कंपनी इशू कर रही है कि भाई 1 लाख शेयर मैं बेच रही हूँ और जो भी चाहे उसको आकर के खरीदे। तो 1 लाख शेयर इशू किए। अब यहाँ पर मे बी 2 सिचुएशन जो है वो क्रिएट होंगी। फर्स्ट हो सकता है कि यहाँ पर 1 लाख शेयर इशू किए तो यहाँ पर 1,50,000 एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन कंपनी यहाँ पर 50,000 शेयर को अभी फ़िलहाल रिजेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब 1 लाख शेयर होल्डर्स आपके 1 लाख शेयर्स को खरीद रहे हैं, जिसको हम कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल फुली पेड अप। कि जितने भी हमारे जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने शेयर कैपिटल में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो पे कर चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरी एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि सपोज आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन खरीदने वाले केवल 80,000 शेयर होल्डर ही आपको मिले हैं। तो इसका मतलब 10 रुपीज़ ईच, ये आपको 8 लाख रुपीज़ ही पे कर पाएंगे। इस कंडीशन को हम कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप। कि सब्सक्रिप्शन तो किया गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, लेकिन उनकी तरफ से पूरा पैसा पे नहीं किया गया। तो वहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कि ऐसे लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया और पूरा पैसा कंपनी को एज अ इक्विटी शेयर होल्डर और एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे कर दिया गया है। ऑन द अबव शेयर्स आर अलॉटेड एज फुली पेड अप पर्स्यूएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। नेक्स्ट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कि ऐसे सब्सक्राइबर कौन है जिन्होंने पूरे पैसे पे नहीं किए। कि पूरे पैसे पे नहीं किए कि सपोज यहाँ पर 10,000 जो शेयर कंपनी इशू कर रही है इसको खरीदने के लिए ए बी सी और डी 3 लोग थे, 10 रुपीज़ का एक शेयर था। यहाँ पर इन्होंने जो है सपोज तो इस तरह से कंपनी इशू कर रही है अपने 10,000 शेयर को, 10 रुपीज़ ईच इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए कंपनी को यहाँ पर रिसीव होंगे एज अ शेयर कैपिटल। यहाँ पर 2,000 शेयर खरीदे गए ए ने, 2,000 खरीदे बी ने, 3,000 खरीदे सी ने और डी ने भी खरीदे यहाँ पर 3,000 शेयर। अब यहाँ पर इन्होंने शेयर्स को खरीदा। इसके बाद 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपीज़ ईच का मतलब टोटल इनको पेमेंट करनी है कंपनी में 20,000 और 30,000 ऑल्सो 30,000। इसका मतलब है कि कंपनी में शेयर्स को खरीदने के लिए 4 शेयर होल्डर्स ने अपने आप को एनरोल कराया और वहाँ पर इनकी तरफ से डिमांड की गई कि ए 2,000 शेयर खरीदना चाहता है कंपनी के, बी 2,000 शेयर खरीदना चाहता है, सी ने खरीदे 3,000 और डी ने भी 3,000 शेयर यहाँ पर खरीदे ABC लिमिटेड इस कंपनी में। अब यहाँ पर सपोज कंपनी ने अपने जो 10 रुपीज़ ईच एक शेयर की जो वैल्यू है उसको कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया हुआ है। कि कंपनी कभी भी एक साथ पूरी पेमेंट को मंगा नहीं सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो शेयर होल्डर्स पर वो एक बर्डन बनेगा और मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शेयर होल्डर इंटरेस्टेड ना हो। तो जब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है कि ये चीज़ भी शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करती हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे होती रहेगी और हम किसी भी एक कंपनी में एज अ ओनर काम करेंगे।
तो यहाँ पर सपोज कंपनी ने कहा कि मुझे 10 रुपीज़ ईच वैल्यू मिलनी चाहिए एक शेयर की, और ये तो यहाँ पर उसने 4 इंस्टॉलमेंट को बनाया। फर्स्ट यहाँ पर होगा एप्लीकेशन, सेकंड होगी यहाँ पर जिसका नाम होगा इंस्टॉलमेंट का नाम, यहाँ पर जो है वो मतलब पर्टिकुलर नाम यहाँ पर हम इन्हीं सबको यूज़ करेंगे एज अ इंस्टॉलमेंट, मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन फर्स्ट जो होता है उसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। एक तरह से ये रजिस्ट्रेशन है कि आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं कंपनी में, तो एक इनिशियल उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी जो आप कंपनी को पे करेंगे। एप्लीकेशन भी उसको कह सकते हैं और रजिस्ट्रेशन, एज ए रजिस्ट्रेशन भी हम उसको कह सकते हैं। एप्लीकेशन सेकंड इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कि जब एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो जाती है और कंपनी उसके बाद अपने शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग उनको अलॉट करती है, मतलब अब शेयर्स उनको बांटने की तैयारी करती है, तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट। इसी तरह से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बनेगी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, और इसके बाद हम इसको कह सकते हैं सेकंड कॉल, और कभी कभी इसी कॉल को कंपनी फाइनल कॉल भी बना देती है। तो इस तरह से कंपनी जो है 4 जो इंस्टॉलमेंट है उनमें अपनी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको रिसीव करती है। तो जो अगर सपोज अब यहाँ पर ए है और ए को इन 4 इंस्टॉलमेंट को पे करना है, और ए के द्वारा ए ने यहाँ पर इसको भी पे कर दिया, इसको भी पे कर दिया, तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब, इसको भी पे कर दिया, चारों इंस्टॉलमेंट को पे किया, तो ये कंडीशन बन जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल फुली पेड अप, कि जो ए था उसने सारे जो शेयर्स में अपना सब्सक्रिप्शन कराया और सारे के सारे पैसे फुली पेड अप, पूरे पैसे पे कर दिए। नॉट फुली पेड अप का मतलब कि नॉट फुल्ली पेड अप, इसका मतलब है इनिशियल कुछ पार्शल पेमेंट पे कर रहा है लेकिन पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुई। सपोज यहाँ पर ऐसा ही कोई शेयर होल्डर है बी, जिसने यहाँ पर अलॉटमेंट एप्लीकेशन की, इंस्टॉलमेंट पे की, अलॉटमेंट पे कर चुका है और फर्स्ट और फाइनल कॉल को पे नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कि इसने सब्सक्रिप्शन तो किया, रजिस्ट्रेशन भी किया, अलॉटमेंट भी हुआ, लेकिन उसने फुली पेमेंट हमें कंपनी को नहीं की है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इक्विटी शेयर ईच पर शेयर कॉल्ड अप लेस कॉल्स इन एरियर। जैसा हमने वहाँ पर देखा कि जब कोई शेयर होल्डर लास्ट कॉल करने के बाद तक भी पैसे अगर पे नहीं करता है, तो हम फिर वहाँ पर एक कंडीशन, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और कंपनी वहाँ पर एक सब हेड, मेजर हेड को यूज़ करेगी और दिखाएगी कि एक्चुअली सपोज मुझे 16 लाख रुपीज़ रिसीव होने थे लेकिन 2000 रुपीज़ मुझे रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह से उस अमाउंट को लेस कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हम यहाँ पर अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, और यही अमाउंट हम बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सो चिल्ड्रन क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2015 विवेक लिमिटेड वॉज फॉर्म विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लेने की एक लिमिट जो है वो है 1 करोड़ रुपए की, जिसके लिए कंपनी ने अपने शेयर्स बनाए और जिसको इक्विटी शेयर 2 लाख शेयर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जिसके लिए एक शेयर की वैल्यू को वहाँ पर डिफाइन किया गया है 50 रुपीज़ ईच। तो इसका मतलब एक शेयर 50 रुपये का यहाँ पर बना है कंपनी की तरफ से। द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन। अब जो कंपनी है वो इशू कर रही है अपने शेयर्स को अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट उसने इशू किए हैं, और जहाँ पर बताया है कि एप्लीकेशन मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए 1,80,000 शेयर्स की। इसका मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर आपने डिवाइड किए हैं, लेकिन अभी आपको केवल 1,80,000 शेयर्स की जो अमाउंट है वही आपको चाहिए, जिसके लिए कंपनी ने अपने जो इंस्टॉलमेंट है उनको यहाँ पर प्रिपेयर किया है। ऑन एप्लीकेशन ₹15, अलॉटमेंट 20, ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट, कि जो भी कॉल पे बैलेंस अमाउंट बचती है उसको हम लास्ट कॉल पर रिसीव करेंगे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, कि कंपनी ने 1,80,000 शेयर्स को इशू किया, जिसमें से सभी ने सब्सक्राइब किया, अपने आप को एनरोल करा लिया है, और कंपनी ने उसके बाद उनके नाम पर शेयर जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं सभी शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पर कंपनी कह रही है कि अभी सिर्फ मुझे 2 ही पेमेंट चाहिए,
कॉल जो है, कॉल की जो बैलेंस अमाउंट है उसको मैं इस साल में इस सेशन में रिसीव नहीं करूंगी, और जिसके लिए कंपनी की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं किया जाएगा। मे बी लेटर हम उस पेमेंट को बाद में रिसीव करेंगे। शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चे कैसे हो रहा है ये। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये जो फॉर्मेट है ये फिक्स है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इनके जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ अभी, और उसके बाद आप उनको अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स, यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 63 लाख रुपीज़ कंपनी को रिसीव होने वाले हैं, और जो एक्चुअल में रिसीव होंगे। शेयर होल्डर्स फंड, तो इसको हम बाद में फिल करते हैं, पहले हमें नोट्स टू अकाउंट जो डिटेल है उसको फिल करना पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं शेयर कैपिटल। अब अगर मैं एक वर्किंग नोट की बात करूँ तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट उसको अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, जिनसे पूरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो गलत हो सकता। चलिए तो वर्किंग नोट को देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बताया गया कि कंपनी विवेक लिमिटेड है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट कंपनी की है 1 करोड़ रुपीज़, जिसके लिए कंपनी ने अपने आप को डिवाइड किया इनटू 2 लाख शेयर्स, और जिसके लिए एक जो शेयर है उसकी वैल्यू यहाँ पर अपॉइंट की गई है 50 रुपीज़ ईच। इस तरह से कंपनी को 1 करोड़ रुपए रिसीव होंगे ड्यूरिंग द सेशन, जब तक भी कंपनी काम करती रहेगी। बट कंपनी इनवाइट ओनली 2 लाख शेयर कंपनी ने अपने आप के डिवाइड किए, अपनी कंपनी के 2 लाख पार्टीशन बनाए, डिवाइड किए, छोटे छोटे शेयर बनाए, लेकिन उसमें से अभी केवल 1,80,000 शेयर ही कंपनी इशू कर रही है, और जिसके लिए कंपनी को पूरी तरह से जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी है, जिसके लिए कंपनी ने कहा कि 50 रुपीज़ ईच मेरा शेयर है। तो टोटल वैल्यू कंपनी को रिसीव होगी यहाँ पर 90 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर बताया गया है कि 90 लाख रुपीज़ कंपनी को इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगी। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो है एप्लीकेशन, कंपनी ने इशू किया 1,80,000 शेयर। 1,80,000 शेयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 15 रुपीज़, सो 27 लाख रुपीज़ इसको एप्लीकेशन के साथ रिसीव होंगे। अलॉटमेंट 1,80,000 इंटू 20 इजक्वल्स टू 36 लाख रुपीज़ यहाँ पर अलॉटमेंट में रिसीव होंगे। तो टोटल यहाँ पर रिसीव होंगे 63 लाख रुपीज़। लेकिन कंपनी ने हमें क्वेश्चन में बताया कि जो मेरी फाइनल कॉल थी उसको मैं अभी इस साल में नहीं करूँगी, तो उस पेमेंट को हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, ये पैसे हमें बाद में मिलेंगे, जिसकी अमाउंट टोटल हम काउंट करेंगे अगर, तो यहाँ पर और बैलेंस पेमेंट है वहाँ पर नहीं दी गई है कि बैलेंस अमाउंट आपकी कितनी बचती है, तो ये भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। सपोज 50 रुपीज़ का एक शेयर था जिसमें से आप 15 और 20 दे चुके हैं, तो इसका मतलब 15 रुपीज़ आपकी बैलेंसिंग अमाउंट होगी, और जिसको आप इंटू करेंगे 1,80,000 से इक्वल्स टू 26 लाख रुपीज़ यू विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। आप नेक्स्ट ईयर में इस पैसे को पेमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मेट देखते हैं। इसी तरह से ऑथराइज कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ने बनाए, अपने 50 रुपीज़ का एक था, तो 1 करोड़ रुपए कंपनी को रिसीव होंगे। इशूड कैपिटल केवल इशू कितने किए गए, 2 में से 1,80,000 रुपये, जिसकी वैल्यू 50 रुपीज़ की है, तो टोटल कैपिटल रिसीव होने वाली है 90 लाख रुपीज़। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया कि सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, कि अभी सब्सक्रिप्शन सबने किया है लेकिन फुली पेमेंट नहीं की गई है, क्योंकि 1,80,000 में से अगर कंपनी 50 रुपये के हिसाब से मंगाएगी तो 90 लाख रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन अभी कंपनी ने 35 रुपीज़ तक की ही अमाउंट को यहाँ पर रिसीव करने के लिए इंस्टॉलमेंट बनाई है, जिसकी टोटल जो वैल्यू बनेगी वो है 63 लाख रुपीज़। तो कंपनी 90 लाख रुपीज़ में से अभी केवल 63 लाख रुपीज़ ही रिसीव करेगी, और 27 लाख रुपीज़ को वो नेक्स्ट सेशन में जब भी वहाँ पर पेमेंट कॉल की जाएगी
उसको पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। सो चिल्ड्रन, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।